Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome back in the Learning with Samina and third episode of how to start learning English and be fluent at it. And today's topic is going to be a very important one, जो कि बहुत commonly मुझसे पूछा भी जाता है कि how you can start improving your listening, because I have always been saying that with listening you can improve English, with listening you can understand English, and with listening you can start speaking as well, because the more you understand it, the more you become fluent at it, the more you become aware of the accents, the more you become aware of the English grammar, the more you become aware of general English. So listening is one of the most important steps, and many people ask that how can they improve their listening, and I'm going to tell you how. It's going to be a very straightforward topic of the day today. So listening is very important, and it is not something which could be done by not focusing, right? हमेशा सब कहते हैं क्योंकि you want to listen, just like turn on a TV, turn on music, आप वो सुने. But सुनना is not just सुनना. सुनना mean understand करना, attention pay करना. You need to concentrate on what the person is trying to say. Why I'm saying this? Because the English you hear, the English you write, the English you start understanding around you is very much different. क्योंकि बहुत लोग वो बोलते हैं जो सोशल मीडिया पे हों, उनके एक्सेंट से it differs. तो मैं आपको बताने वाली हूँ द फ्यू टिप्स विच कैन हेल्प यू इम्प्रूव इट. सबसे पहले, द इंग्लिश यू हियर फ्रॉम एनीवन. अगर आप मुझसे सुन रहे हैं, अगर आप टीवी पे देख रहे हैं, अगर आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को सुन रहे हैं, अगर आप किसी पीएम को सुन रहे हैं, अगर आप किसी को भी सुन रहे हैं दुनिया भर में से, तो आपने सबसे पहले कंसंट्रेट करना है दैट व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. यू जस्ट डोंट हैव टू लिसन इट, you have to try to understand what they are saying. Let's say I am saying something and you are looking at the subtitles, right? Because I speak very slowly with you, because I know there are many people who are beginners and they need to understand it, so I'm trying to speak slowly. But यही आप 2 की स्पीड पे सुनेंगे, you might don't understand it, then you might find it difficult to pick out the words, pick out the vocabulary. But और अगर आप यहीं पे किसी ऐसे इंसान के सुनेंगे जिनका कोई स्कॉटिश या ब्रिटिश अमेरिकन स्ट्रॉन्ग एक्सेंट है, वहाँ पे you get confused at what they are trying to say, because you are used to hearing the accents of your own people. And I'm going to tell you, first step is that start listening to people of every accent. आप YouTube पे जाएं, YouTube is filled with people speaking in English, filled with people, and you can get so much examples. आपने क्या करना है, you have to watch few of the people with the different accents and try to understand them. You will see a tip from every person that don't switch on the subtitles if you want to start listening, if you want to start learning English. But I would say do it. Please do it. आप subtitles के बगैर beginning में सुनेंगे, then it's not gonna help you. First step is, if you watch a certain series, I'm gonna give you an example of Friends. Again, अगर आप Friends पहली बार देख रहे हैं, which has 10 seasons with the classic English, with the classic characters, if you watch it for the first time, you have to hear with the subtitles, you have to listen with the subtitles, you have to watch with the subtitles. उससे क्या होगा कि आपको understand करेगा कि what they are trying to say, उनके expression और उनके dialogues को you can match, and that can make a great sense. और अगर आपको समझ नहीं आ रही है, you can go to the Google, you can go to the dictionary, but try to understand what they are trying to say. Second time आप वही series देखें, बट आप कोशिश करें कि आप सबटाइटल्स ऑन तो रखें, बट आप उनकी तरफ देखें नहीं. जहाँ जहाँ आपको मुश्किल आए, आप वहाँ की तरफ सबटाइटल्स की तरफ देखें. But mostly you look at the actors, you look at how they are trying to say it, you look at the situation, you try to understand what they are trying to say, how they are gonna make a sense to you. And जब आप थर्ड टाइम देखें तो आप टोटली सबटाइटल्स को रिमूव कर दें एंड अपना एक टेस्ट लें कि अच्छा अब मुझे समझ आ रहा है या नहीं, लेट्स सी हाउ मच आई कैन अंडरस्टैंड नाउ. उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको समझ आने लग जाएगी. और मैं आपको सीरीज़ का ही क्यों कहती हूँ हमेशा, और फ्रेंड सीरीज़ का, बिकॉज दिस हैज़ हेल्प मी अलॉट एंड सो मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड. इवन इफ़ यू गो ऑन गूगल, आप वहाँ पे सर्च भी करेंगे ना कि आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश by watching series Friend, and you will get different clips on social media जहाँ पे separate उनके clips दिए गए हैं to make you understand a particular sentence, particular situation. Series मैं इसलिए कहती हूँ because series have very natural basic conversation जो कि आपके लिए बहुत easy है. अगर आप इंग्लिश वीडियोज़ या कुछ और देखते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स वीडियोज़ देखते हैं, तो वो इंग्लिश होती हैं जो वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है. जो कन्वर्सेशनल इंग्लिश होती है जैसे फ्रेंड्स में है,
दैट इज़ ऑन सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशन में है, डिफरेंट एपिसोड है, डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, उनकी डिफरेंट लाइफ है। यू गेट इंटरेस्टेड, यू वांट टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग, आप कैरेक्टर्स में घुसते हैं, आप सिचुएशन, हर सिचुएशन के लिहाज से आप डिफरेंट इंग्लिश डायलॉग सीखते हैं, डिफरेंट वोकैबुलरी सीखते हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप आई कैन गिव यू। सेकेंड इज़ कि आप सीरीज़ के अलावा अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं तो टेक टॉक, पॉडकास्ट या जो भी ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं वो ज़रूर देखें आप। आजकल मैं अगर आपको पाकिस्तानी की एग्जांपल दूं, देयर आर सो मैनी पीपल हु आर डूइंग द पॉडकास्ट। उनमें से ज़्यादा मुझे नाम तो नहीं आते हैं, बट वन ऑफ द मेन पीपल आई फॉलो इज़ शाबिर जाफरी एंड ही टॉक्स इन अ वेरी गुड वे। एंड उसके साथ जो गेस्ट आते हैं दे टॉक इन अ वेरी गुड वे एंड दे हैव अ वेरी नॉर्मल कन्वर्सेशन अबाउट पीपल्स इंटरेस्ट एंड दे कैन हेल्प यू। तो अगर आप वो वैसी चीज़ें देखते हैं बजाय नॉर्मल चीज़ों के, बोरिंग चीज़ों के, तो आपको इन चीज़ों से बहुत हेल्प मिलती है, स्पेशली पॉडकास्ट से। पॉडकास्ट में बहुत नेचुरल कन्वर्सेशन हो रही होती है, बहुत नेचुरल सेंटेंसेस यूज़ हो रहे होते हैं, बहुत डेली कन्वर्सेशन टाइप हो रही होती है। तो उससे आप वो जल्दी पिक करेंगे तो वो आप डेली यूज़ में डालकर अपनी बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी मेजर टिप आई कैन गिव यू। सेकेंड वॉज जो मैंने आपको पहले भी दी है कि ट्राई करें कि डिफरेंट एक्सेंट्स के लोगों को फॉलो करें और डिफरेंट एक्सेंट्स के लोगों की वीडियोस देखें। उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि डिफरेंट तरीक़ों से कैसे लोग क्या कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूँगी, अगर मैं इंग्लिश बोलूँगी तो अगर लेट्स से आई विल से व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, ठीक है। वहीं पे आप अमेरिकन को देखेंगे, दे विल से इट इन अ मोर फास्टर वे, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, ठीक है। तो वो ऐसे बोलेंगे ना वेरी मच हैवी एक्सेंट, तो आप सुनेंगे और आप कहेंगे आई डोंट नो दिस वर्ड, जबकि वो आपको पता है ऑलरेडी, आपको पता है, आपको उसका मीनिंग पता है, आपको सब कुछ समझ आता है, बट उन्होंने इतनी फास्टली बोला आपको समझ नहीं आया। तो लिसनिंग इंप्रूव करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप डिफरेंट लोगों को सुने डिफरेंट एक्सेंट्स के साथ। उस तरह चाहे कोई आप कोई वीडियो 2x पे भी लगा देंगे ना यूट्यूब पे, तब भी आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। लेट्स से आई वाज वॉचिंग अ वीडियो लास्ट डे, राइट, एंड आई हर्ड इट ऑन 2x और फिर भी मैं अंडरस्टैंड कर पा रही थी। वाई? बिकॉज आई नो एंड आई अंडरस्टैंड लिसनिंग, चाहे वो किसी भी एक्सेंट का बंदा बोल रहा हो, चाहे वो किसी स्पीड में बोल रहा हो। तो आपके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन, आई वुड से द सेम थिंग अगेन विच आई हैव बीन सेइंग इट अ लॉट, कि जो भी आप पढ़ें, जो भी आप सुने, वो राइट डाउन कर लें। जिस तरह आप अपनी एक नोटबुक बनाएं, उसमें कहें कि हैप्पी सेंटेंसेस सिचुएशंस के लिहाज से, fearful sentences, sorrow sentences, worried sentences एंड सिचुएशनल, कि अगर इस सिचुएशन में हम कॉफ़ी पीने जा रहे हैं तो हमें वेटर को क्या बोलना है। अगर हमें किसी को कहना है कि ओपन द डोर फॉर अस, हमने क्या बोलना है। अगर हमने किसी को कहना है कि साइड पे हो जाओ, टेक अ साइड, तो हमने उसको क्या बोलना है। कोई बैगर होगा तो हमने उसको क्या बोलना है। हमें कोई फ्रेंड की शादी होगी तो हमने कंग्रेचुलेट कैसे करना है। तो वो जब इन डिफरेंट वेज में सीरीज में बताया जाता है, और अगर आप उसको नोट डाउन कर लेंगे सिचुएशन के लिहाज से, तो आपके लिए ईजी होगा वो खोल कर देखना कि अच्छा ये कहना है, उतना आपको याद होगा। क्योंकि आपको पता होगा, हमें बुक्स में भी, हमें स्कूल में भी ये पढ़ाया जाता था कि जो भी आप सुने, राइट दैट डाउन, बिकॉज द मोमेंट यू राइट इट डाउन, वो आपके दिमाग में और गहराई में पक्का हो जाता है। एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आप कुछ नया सीखें, नए वर्ड सीखें, नए सेंटेंसेस सीखें, नए पैराग्राफ सीखें, नए सिचुएशन के लिहाज से एक्सप्रेशन सीखें, इडियम सीखें, राइट दैट डाउन, बिकॉज दैट इज़ गोना हेल्प यू। ओके, नेक्स्ट आई वुड से कि सेम चीज़ को बार बार देखें। जिसमें मैंने आपको पहले कहा, फ्रेंड्स को 3-4 बार देखें, पहले सबटाइटल्स के साथ, दूसरी बार सबटाइटल्स की तरफ ध्यान न दें, बट दोनों चीज़ों को देखें, तीसरी दफ़ा सबटाइटल्स हटा दें और ऐसे ही ड्रामा देखें। तो इस तरह आप सेम चीज़ देखेंगे, आपको ऑलरेडी पता होगा कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, व्हाट द सिचुएशन इज़ गोना कम, तो आपके लिए और ईजियर होगा टू अंडरस्टैंड इट। अगर आप हर दफ़ा कोई नई चीज़ देख लेंगे, हर दफ़ा कोई नई चीज़ पे अपने आपको चैलेंज देंगे एट द बिगिनिंग, तो आप कहने वाले हैं कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, दिस इज़ नॉट माई थिंग। बट ऐसा नहीं है। जो भी बंदा सीखने आता है वो पहले एक चीज़ को बहुत बार देखते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स से अगर आप कोई गाना सुन रहे हैं इंग्लिश में एंड यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द लिरिक्स, तो आप पहली बार कैप्शंस, सारी लिरिक्स पढ़ेंगे, अपने सामने रखेंगे, उनको दोहराते रहेंगे, दूसरी दफ़ा आप गाएंगे भी और उनको देखेंगे भी, फिर दोहराएंगे, चौथी दफ़ा या 5वीं 6ठी दफ़ा आप फिर लिरिक्स को हटाकर फिर आप गाना गाना शुरू होंगे, राइट। तो इस तरह ही होता है कि आहिस्ता आहिस्ता होता है। जैसा मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि डोंट जंप ऑन द रूफ, आपने सबसे पहले पहली सीढ़ी चढ़नी, यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, तब जाके आप रूफ पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है भाई। one of the most important tip which I heard from people and initially I thought कि फजूल है,
बिकॉज आई इनिशियली थॉट कि आप क्या करते हैं, जब भी आप फोकस्ड हों, जब भी आप फ्री हों, तब आप इंग्लिश की वीडियोस देखें. बट देर इज़ अ वेरी ग्रेट टीचर हु टोल्ड मी दैट आप इंग्लिश की वीडियोस तब देखिए जब आप कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हों जिसमें आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं. लेट्स से अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें आप म्यूजिक सुन रहे होते हैं, तो एक काम करिए, कुछ पॉडकास्ट लगा दें, इंग्लिश में कोई वीडियो लगा दें. समोसों की रोल पट्टी बना रहे हैं, आप कबाब बना रहे हैं, आप शेप दे रहे हैं, आप सब्जी काट रहे हैं, एंड यू कैन लाइक डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ. ऑब्वियसली हाथ मत काटना, लेकिन आप कुछ टीवी पे लगा दें, पॉडकास्ट लगा दें और उनको सुनते रहें, क्योंकि आप वर्ड्स पिक करते रहेंगे, अंडरस्टैंड करते रहेंगे कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. उससे ये होगा कि आप अपना ना टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है, और ना ही आपको इंग्लिश को एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, और आप सीखते भी जाएंगे, और आप इतना टाइम दे सकते हैं विच यू कांट इवन इमेजिन टू गिव, राइट. तो आप अपनी जो 30 मिनट्स की रूटीन है उसके अलावा भी लिसनिंग को, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, आप लिसनिंग को बहुत ज़्यादा टाइम दे सकते हैं अपनी डेली एक्टिविटीज़ में उसको डालकर. एक और टिप होती है कि सोते वक्त भी वीडियोस को लगा के सो जाए, क्योंकि आप सुनेंगे, लेकिन आई डोंट लाइक बिलीव इन दैट, बिकॉज मैं जैसे सोती हूँ वो तो घोड़े बेच के सोने वाली बात है. तो मुझे अपनी होश नहीं होती है, तो हाउ कैन आई केयर अबाउट द वीडियो विच इज़ प्लेइंग बाय माई साइड. तो आई एम नॉट गोना सजेस्ट यू दैट. बट एक जो मैंने आपको भी बताया है कि जब भी आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो विच कैन बी डिस्ट्रैक्टेड, जो दो जगह पे आपकी अटेंशन इजीली दे सकते हैं, जैसे आप पढ़ रहे हो, यू कांट वॉच द वीडियोस. अगर आप कुछ एक्टिविटी छोटी मोटी कर रहे हैं, तो आप वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब आप पॉडकास्ट वगैरह लगा लें. क्या होगा कि यू कैन लाइक वॉक एंड यू कैन हेयर व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, और आप वो अंडरस्टैंड करते जाएंगे, आपके दिमाग में बैठता जाएगा, एंड इट इज़ गोना इम्प्रूव यू. और आपका ना टाइम वेस्ट होगा और ना ही आपको इंग्लिश को एक्स्ट्रा टाइम देने पड़ेंगे. बिकॉज बहुत से लोग ये कहते हैं कि हाउ दे कैन गिव टाइम, उनके पास ऑफिस जाना होता है, उनके पास ऑफिस होता है, उनके पास स्कूल होता है, ट्यूशन होता है, दे हैव सो मच टू डू, उनको खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है. एंड आई एम टेलिंग यू, यू डोंट हैव टू गिव इट एन एक्स्ट्रा टाइम. आप वही टाइम दें जो आप अपनी डेली एक्टिविटी में हर चीज़ को देते हैं, बट वहाँ पे इंग्लिश और लिसनिंग को इंक्लूड कर लें. बिकॉज द मोमेंट यू मर्ज दीज थिंग्स, आप यूज टू हो जाते हैं, तो इससे इट गेट्स ईजियर. और जितना आपके लिए एजुकेशन फ़न होगी, जितना आपके लिए लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग अ लैंग्वेज फ़न होगी, इतना इट्स गोना बी ईजियर फॉर यू to understand. I really hope you learned something. I tried to make it very simple and understandable for you guys. Stay tuned for more such videos. Allah Hafiz.